Hello everyone, good morning. Welcome to Mentee's Daily News Analysis. First article is an ad to cement digital authoritarianism. So that means that Data Protection Act, which has been recently passed in 2023, ये इसका aim क्या था? To regulate personal data, but इसने बहुत ज़्यादा criticism face करा that for favoring state control over transparency and accountability. अब जो एक्ट है इट रिफ्लेक्ट्स अ बिलीफ कि जो टेक्नोलॉजी है इट कैन सॉल्व सोसाइटल प्रॉब्लम्स. इससे होगा क्या? गवर्नमेंट की सर्विलेंस इंक्रीज होगी एंड साथ ही में डेटा कलेक्शन भी. ये फोकस करेगा प्रोजेक्ट्स जैसे कि आरोग्य सेतु और साथ में स्मार्ट सिटीज के ऊपर, विच eventually will raise concern about privacy and साथ ही में about safety. अब कुछ challenges भी है इसी बिल को लेकर कि जो एक्ट है ये अलाउ कर रहा है एक्सेप्शन फॉर मास सर्विलेंस प्रोजेक्ट बिकॉज इट लैक्स क्लैरिटी. इट इज लीडिंग टू वरी अबाउट citizens' right and obviously freedom also. Next is a necessary break, that is the haphazard development is increasing the impact of the weather event. So what has happened that despite जो prediction है weak monsoon का due to El Nino, North India has experienced heavy rainfall which has caused floods in Himachal Pradesh, Punjab and Uttarakhand. And ये जो unexpected deluge has resulted in loss of life and property damage. अब यहाँ पे कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी दैट इज बॉट फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन दैट हैज also caused excessive rainfall during a time that usually typically shouldn't occur. So now what scientists are studying here is that this abnormal pattern is leading to warming of the Arctic, which eventually is causing shift in the polar jet stream, which is impacting weather in India. एंड साथ ही में जो ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जैसे कि चार धाम एंड इवन द रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट दैट हैज ऑलरेडी ऑल्टर्ड द हिमालयन लैंडस्केप एंड इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू लैंडस्लाइड. नेक्स्ट इज जनरल स्टडीज टू पॉलिटी, न्यू बिल एंड अ प्रिंसिपल कोर्स फॉर क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स. सो अभी इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए थे न्यू बिल्स रिप्लेस करने के लिए एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉस को, विच हैज स्पार्क इन वेरियस रिएक्शन. बट ये चेंजेस इम्पॉर्टेंट भी है फॉर शेपिंग फ्यूचर क्रिमिनल लॉ, फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, इफेक्टिवनेस एंड डिलीवर कैपेसिटी. बट कुछ चैलेंजेस भी है जैसे कि द क्रिमिनल लॉ involves balanced public opinion. It should address the systematic issues and ensure that we should adhere to the fundamental principles. लेकिन जो changes इसमें आ रहे हैं that also promote inclusivity, technological integration and साथ ही में जो ये reforms हैं ये depend करेंगे that it should lead or should depend on the fairness, equality and protection of the vulnerable. Next है current affairs की, addressing housing shortage in urban area requires urgent concerted effort. तो जो नई अर्बन स्कीम आ रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अभी अनाउंस की गई है दैट इज उसको जो शॉर्ट कमिंग्स थी आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर उनको इंडिकेट करते हुए उनको फोकस करते हुए एंड ये जो स्लो प्रोग्रेस था सैंक्शन हाउसेस को कंप्लीट करना और हाई बेनिफिशियरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैव प्रमोटेड दिस मूव. इस न्यू स्कीम का जो आने का रीजन क्या है? बिकॉज ओवर द पास्ट 8 years of the प्रधानमंत्री आवास योजना ओनली अराउंड 2/3 of the सैंक्शन हाउसेस वर completed. और जो बेनिफिशरीज है इट स्टिल bear a financial burden, with the parliamentary committee suggested that government should reduce their share to only around 40% to make housing more accessible. So यहाँ पे कुछ suggestions भी दिए गए हैं that government should consider the parliamentary report, the committee and recommendation कैसे की adopt करना एक
फ्लेक्सिबल असिस्टेंस अप्रोच जो कि लोकल कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, पुअर हाउसिंग को एड्रेस करना, अनऑक्यूपेंसी इश्यूज को एड्रेस करना एंड इंगेज करना रेलिवेंट स्टेक होल्डर फॉर इफेक्टिव अर्बन housing solution. So at the end, ultimately the goal should be to turn housing for all into a practical reality. Environment के perspective से understanding the ministry's U-turn. So जो अभी Ministry of Environment, Forest, Climate Change है, it has initially proposed merging various environmental organizations under integrated regional offices which has sparked criticism. क्योंकि जो मिनिस्ट्री का यहाँ पे जो ये मूव है, इसका एम क्या है, दैट वी शुड streamline the operation, but it is facing concern over compromising independence. So अब रीजंस क्या है विड्रॉल के, कि मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अपना विड्रॉ कर लिया है ये जो मर्जर प्लान था ड्यू टू पोटेंशियल टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग दीज इंस्टीट्यूशंस. अब क्रिटिक्स यहाँ सजेस्ट कर रही है दैट डिसीजन lagged through consideration and reorganization idea was obviously destined to fail. Next है why is Bihar caste based survey facing legal challenges. तो जो बिहार का अभी कास्ट बेस्ड सर्वे है, इट इज फेसिंग लीगल चैलेंजेस इन द सुप्रीम कोर्ट. सर्वे का एम ये था कि हम सोशो इकोनॉमिक डेटा को गैदर करें फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप्स, लेकिन जो इसकी लीगैलिटी है वो क्वेश्चन की जा रही है ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न और पोटेंशियल वायलेशंस ऑफ प्राइवेसी को लेकर. सर्वे इंटेंडेड कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो वेरियस कास्ट ग्रुप्स की, पर्टिकुलरली ओबीसीज की, बियॉन्ड द शेड्यूल कास्ट डेटा जो कि रेगुलर आपका सेंसस में कलेक्ट किया जाता है. लेकिन जो यहाँ पे डेटा गैप है, इट हैज़ लेड टू डिमांड फॉर बेटर टारगेटेड पॉलिसीज और वी कैन से बेटर टारगेटेड वेलफेयर पॉलिसीज. एंड सर्वे को भी ऑपोजिशन इसी पे मिल रही है ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट the state authority to conduct a census is limited as only the central government has a constitutional authority अगर कोई भी census activity करनी है. Next है विश्वकर्मा scheme will aid 30 lakh artisan families. तो ये आपने कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव कर दिया स्कीम विच वॉज फॉर स्किल्ड पर्सन एज वी हैव डिस्कस्ड. प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे. नेक्स्ट से जनरल स्टडीज ट्री हेल्थ के पर्सपेक्टिव से सेंटर एंड हु टू लॉन्च ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ. सो WHO in partnership with India is launching a global initiative on the health and that too during the G20 summit. Initiative focus किस पे करेगा, डेटा कन्वर्जेंस पे, हेल्थ प्लेटफॉर्म पे एंड इन्वेस्टमेंट्स में डिजिटल हेल्थ में एंड दैट टू ग्लोबली. अब की कंपोनेंट्स क्या है, इट विल हैव एन इन्वेस्टमेंट ट्रैकर, दैट मीन्स अ ट्रैकर टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक नीड और वी कैन से अ लाइब्रेरी ऑफ एग्जिस्टिंग डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म. इससे होगा क्या, यू कैन इन्हांस द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड साथ ही में हेल्थ केयर डिलीवरी थ्रू डिजिटल इनोवेशन. अब जो प्लेटफॉर्म है वो प्रायोरिटाइज करेगा डेटा सिक्योरिटी को बिकॉज इट शुड रिस्पेक्ट सिटीजन्स डेटा और सिटीजन्स ओनरशिप ऑफ डेटा. एंड इवन इनिशिएटिव ऑल्सो इंक्लूड्स अ climate health initiative in India with the Asian Development Bank collaboration and introduce a portal for patient and healthcare workforce mobility. यहाँ से इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, बाकी न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू की एग्जैक्टली सेम थी. That India's exports continue to fall, policy must focus on creating a conducive ecosystem to boost export. So एक जो डेटा है, कौन सा डेटा, ट्रेड डेटा जो रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा कुछ दिन पहले, वो पॉइंट कर रहा है जो वीकनेस है इंडिया के एक्सपोर्ट को लेकर बिकॉज इट हैज फेल टू अ 9-month लो ऑफ $32.25 बिलियन इन जुलाई विद अ डिक्लाइन ऑफ ऑलमोस्ट 16%. तो यहाँ पे उसी डेटा के रिगार्डिंग ये फैक्ट्स दिए गए हैं. सो ये थी आज की एनालिसिस. अगर आपको अच्छी लगी प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe to Menti Academy. Thank you. Have a nice day.